کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر نتیجہ NA 156 کا سامنے آ گیا ہے، جہاں پر انڈیپینڈنٹ امیدوار یعنی کہ آزاد امیدوار عائشہ نذیر آگے ہیں 4082 ووٹ لے کر، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے نذیر احمد ہیں جن کو 2492 ووٹس یہاں پر ملے ہیں۔ تو ایک نتیجہ جو آپ تک ہم نے پہنچایا ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹ کا، دوسری جانب ایک اور اہم حلقہ جس پر آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، حلقہ NA 130، یہاں پر نواز شریف آگے ہیں 464 ووٹ ان کو اب تک مل چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب یاسمین راشد ہیں جو کہ آزاد امیدوار ہیں، ان کو اب تک 212 ووٹ ملے ہیں۔ تو یہاں پر برتری حاصل ہے میاں محمد نواز شریف کو۔ ایک اہم ترین حلقہ ہے یہ لاہور کا NA 130، جس پر ہم آپ کو مسلسل اپڈیٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، NA 19 کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر آزاد امیدوار اسد قیصر جن کو 1612 ووٹ اب تک مل چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب یعنی کہ دوسرے نمبر پر JUI فے کے امیدوار ہیں جن کو 633 ووٹ ملے ہیں اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں، یعنی کہ یہاں پر آزاد امیدوار آگے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید حلقوں کے ریزلٹ بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے جو ہمارے اسٹوڈیو میں آگمنٹڈ ریالٹی کے ذریعے موجود ہے اور یہاں پر پہنچ رہا ہے۔ ایک اور حلقہ آپ کو بتاتے ہیں NA 44، یہاں پر آپ کو بتائیں کہ آزاد امیدوار علی امین گنڈا پور آگے ہیں 3976 ووٹ لے کر۔ اب واپس چلتے ہیں اور کرن اور فواد سے جانتے ہیں کہ مزید کن حلقوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں NA 237 اس کے نتائج بھی سامنے ہیں۔ NA 238 کراچی، یہاں کے بارے میں دیکھیے MQM آگے دکھائی دے رہی ہے، صادق افتخار یہاں پر آگے ہیں۔ NA 239 کراچی، یہاں پر یاسر بلوچ آزاد حیثیت میں آگے ہیں۔ آپ کو بتائیں اس حلقے کے بارے میں بھی جو اگلا ہمارے سامنے ہے NA 130، بڑا مقابلہ لاہور کا، میاں نواز شریف یہاں پر آگے ہیں 9254 ووٹس ان کے، یہ یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ کانٹے کے مقابلے کی بات کی گئی تھی لیکن یہاں پر ان کو شروع سے ہی لیڈ حاصل ہے۔ یاسمین راشد یہاں پر آزاد حیثیت میں لڑی لیکن آپ کو بتا دیں کہ ان کے ووٹس کم از کم بھی 3000 کی حد تک کم ہیں۔ بڑی لیڈ حاصل ہے میاں نواز شریف کو، یہ ان کا گھر ان کا گڑھ کہلاتا ہے، یہاں کا یہ بڑا مقابلہ ہے۔ بالکل کرن، آپ نے صحیح کہا کہ یہ گڑھ بھی ہے گھر بھی ہے۔ میاں محمد نواز شریف یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، PMLN کے سربراہ ہیں، 9254 ووٹ انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد 6892 ووٹ لے کر یہاں پر ان سے پیچھے دکھائی دے رہی ہیں۔ آزاد امیدوار ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، 3000 ووٹوں کے مارجن سے وہ پیچھے ہیں، جبکہ 3000 ووٹوں کے مارجن سے میاں محمد نواز شریف یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں۔ لاہور کا بڑا اہم حلقہ ہے NA 130، تمام نظریں اس حلقے کے اوپر بھی جمی ہوئی ہیں کہ یہاں سے کون امیدوار جیت سکتا ہے۔ لاہور کا ایک اور بہت اہم حلقہ NA 117، لاہور 1، پہلی سیٹ ہے یہ لاہور کی، جہاں سے استحکام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں، لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ 4437 ووٹ انہوں نے حاصل کر رکھے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ہیں آزاد امیدوار علی اعجاز، انہوں نے 2049 ووٹ حاصل کر رکھے ہیں۔ 329 پولنگ اسٹیشنز ہیں، 13 پولنگ اسٹیشنز کے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں۔ NA 127 لاہور 11، یہ بھی بہت اہم حلقہ ہے، بلاول بھٹو زرداری سٹل لیڈ کر رہے ہیں، 1490 ووٹ انہوں نے یہاں پر حاصل کیے ہیں۔ 8 پولنگ اسٹیشنز کے نتائج ابھی تک آ گئے ہیں، جبکہ عطا اللہ تارڑ 790 ووٹ انہوں نے ابھی حاصل کیے ہیں۔ مریم نواز نے بھی اپنا ووٹ اسی حلقے میں کاسٹ کیا تھا۔ اب آپ کو کراچی کی طرف لیے چلتے ہیں جلدی سے۔ NA 240، یہاں پر انڈیپینڈنٹ امیدوار لیڈ کر رہے ہیں۔ NA 241 کراچی جنوبی، خرم شیر زمان آگے دکھائی دے رہے ہیں، ڈاکٹر فاروق ستار کافی پیچھے ہیں۔ مصطفیٰ کمال MQM سے تعلق 393 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ NA 242 میں قادر خان مندوخیل پیچھے ہیں۔ 243 کماڑی، ہمایوں عثمان MQM کے آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ شجاعت علی انڈیپینڈنٹ امیدوار پیچھے ہیں۔ سید حفیظ الدین MQM سے تعلق آگے دکھائی دے رہے ہیں NA 245 میں۔ عطا اللہ خان انڈیپینڈنٹ امیدوار پیچھے ہیں۔ کراچی غربی امین الحق آگے ہیں، 330 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہوئے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان 235 ووٹ لے کر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک اور حلقہ 247 کراچی کا، خواجہ اظہار الحسن آگے ہیں اور منم ظفر خان یہاں پر JI کے پیچھے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی
सिद्दीकी MQM पाकिस्तान के सरबराह 859 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। अरसलान खालिद यहां से हमें NA 248 से पीछे दिखाई दे रहे हैं। कराची वस्ती 2 के इंतखाबी नताइज हैं, हतमी, गैर सरकारी, और आपको बता दें अभी और भी नताइज आने बाकी हैं। NA 249 यहाँ पर उजैर गौरी आगे दिखाई दे रहे हैं आजाद हैसियत में लड़ते हुए। जमात इस्लामी उम्मीदवार थोड़ा सा पीछे हैं, 207 वोट्स इन्होंने हासिल किए। मुस्लिम परवेज NA 249 कराची वस्ती 3, यहाँ का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। उजैर गौरी आजाद हैसियत में लड़ते हुए यहाँ आगे दिखाई दे रहे हैं। 640 इनके वोट्स की तादाद है। इनको अभी तक कितने वोट्स पड़े हैं, लेकिन अभी और भी नताइज इन इलाकों से आना बाकी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आते जा रहे हैं, हम आपको बताते जा रहे हैं। NA 114 शेखुपुरा 2, यहाँ PMLN उम्मीदवार राना तनवीर हुसैन आगे हैं। इन्होंने अच्छे खासे वोट्स इकट्ठा किए हैं, 33,526 वोट्स इनको अभी तक मिल चुके हैं। 301 पोलिंग स्टेशन में से अभी आधे ही रह गए कि जिनके नताइज सामने आए हैं। शहरियार आफरीदी आजाद हैसियत में लड़ते हुए NA 35 से आगे दिखाई दे रहे हैं। JUI फे के उम्मीदवार यहाँ पर पीछे हैं। 9,468 वोट्स हैं कि जो इन्होंने अभी तक हासिल किए हैं। कोहाट का ये नतीजा है NA 35 का, जो आप समा की स्क्रीन पर देख रहे हैं। शहरियार आफरीदी आजाद उम्मीदवार इनकी लीड दिखाई दे रही है। NA 43 टांक दावड़ खान कुंडी यहाँ से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं। इनके वोट्स की तादाद है 3,865, ये यहाँ पर आगे दिखाई दे रहे हैं। TLP उम्मीदवार यहाँ पर पीछे है। रमजान शूरी 3,576 वोट्स अभी तक इनको मिले हैं। NA 75 नरोवाल 1, यहाँ से आपको बताएं दानियाल अजीज आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। PMLN उम्मीदवार यहाँ पर पीछे दिखाई दे रहे हैं। 8,103 दानियाल अजीज को अभी तक वोट मिले हैं आजाद हैसियत में लड़ते हुए, ये इनके वोट्स की तादाद है। NA 80 NA 80 गुजरावाला 4, यहाँ पर असदुल्ला आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। 14,890 वोट्स इनको हासिल है। PMLN उम्मीदवार यहाँ पर खासे पीछे दिखाई दे रहे हैं। शाहिद उस्मान को अभी तक 13,181 वोट्स मिले हैं। गुजरावाला 2 खुरम दस्तगीर आगे दिखाई दे रहे हैं PMLN से लड़ते हुए। मुबीन आरिफ NA 78 से पीछे दिखाई दे रहे हैं। 16,670 वोट्स इनको हासिल हुए हैं। NA 81 गुजरावाला 5, यहाँ राना बिलाल एजाज आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। 10,901 इनके वोट्स की तादाद है। PMLN उम्मीदवार यहाँ पर पीछे है। NA 87 खोशावान, यहाँ पर शाकिर बशीर PMLN के उम्मीदवार आगे दिखाई दे रहे हैं। 15,354 इनके वोट्स की तादाद है। आजाद उम्मीदवार इनसे खासे पीछे हैं। NA 91 फैसलाबाद 4 हाफिज मुमताज आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। 4,186 इनके वोट्स की तादाद है। NA 266 यहाँ का बताएं आपको, यहाँ पर महमूद अचक से आगे हैं। पख्तूनख्वा मैप ये आगे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 4,012 इनके वोट्स की तादाद है। आपको बताएं 265 NA 265 पिशीन से मौलाना फजलुर रहमान आगे हैं। इनके वोट्स की तादाद है 7,103, ये आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 265 का ये बड़ा नतीजा। NA 228 यहाँ पर रफीक जमाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत आगे दिखाई दे रहे हैं। 22,961 इनके वोट की तादाद है। रफीक जमाली खासे आगे, तीर खासा आगे। NA 226 जामशोरो यहाँ असद सिकंदर आगे हैं। तीर यहाँ भी आगे जाता दिखाई दे रहा है। GDA उम्मीदवार पीछे दिखाई दे रहे खासे। NA 226 जामशोरो का ये नतीजा है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से ये हमारे पास आया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, काउंटिंग अब भी जारी है। बड़ा मुकाबला, बड़े इलाके का मुकाबला। NA 127 लाहौर 11, यहाँ बिलावल भुट्टो आगे हैं। 1,528 वोट्स इनके पास हैं। साथ साथ आपको बता दें अता तारड़ यहाँ पर थोड़ा पीछे दिखाई दे रहे हैं। 1,082 वोट्स अभी तक इनके सामने आए हैं। और अब आपको बता देते हैं NA 129 लाहौर 13 के बारे में। हाफिज नौमान PMLN के उम्मीदवार यहाँ पर आगे हैं, खासे आगे हैं। 14,300 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं। आजाद उम्मीदवार इनसे खासे पीछे दिखाई देते हैं। यहाँ पर 143 NA 143 साहिवाल 3 आजाद उम्मीदवार मोहम्मद तुफैल यहाँ पर आगे हैं। 14,278 वोट्स इनकी है इनके पास और अभी भी काउंटिंग होती जा रही है। NA 150 मुल्तान 3 यहाँ के बारे में देखिए। जैन कुरैशी आजाद हैसियत में लड़ते हुए आगे हैं। PMLN उम्मीदवार यहाँ पर पीछे है। जावेद असगर साहब ने अभी तक 8,844 वोट्स हासिल किए हैं। NA 172 की बात जानिए। जावेद इकबाल आजाद हैसियत में लड़ते हुए यहाँ पर आगे हैं। रहीम यार खान 4 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। 3,479 वोट्स इन्होंने हासिल किए हैं।
NA 172 रहीम यार खान 4 का नतीजा। NA 208 शहीद बेनजीर आबाद 2, गुलाम मुस्तफा शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक, ये बहुत आगे है, 12,386 वोट्स इनके पास है। आजाद उम्मीदवार, इसके साथ साथ GD उम्मीदवार जो है वो खासे पीछे दिखाई दे रहे हैं। NA 242 किमाड़ी मुस्तफा कमाल MQM पाकिस्तान से यहाँ पर आगे हैं, लेकिन साथ साथ आपको बताएं काउंटिंग में वोट्स की तादाद बढ़ी है कादर मंदूखेल के, 2,552 वोट्स अब इनके हो गए हैं, जबकि मुस्तफा कमाल के 5,073 वोट्स हैं। अभी ये कुछ मामला सामने आ रहा है, उनके वोट्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, ये भी बड़ा मुकाबला है। पोलिंग स्टेशन भी अच्छे खासे हैं, बिल्कुल 286 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें से अभी 8 पोलिंग स्टेशन के नतीजे आए हैं। बाबर मूसा खेल इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 1,456 वोट लेकर आगे हैं। NA 252 में लोरा लई कमदुक्की का ये नतीजा है। बाबर मूसा खेल आगे दिखाई दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यहां पर पीछे है। अब्दुल हकीम बलोच मलीर 3 की ये नशिस्त है, NA 231, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें आगे दिखाई दे रही है। अब्दुल हकीम बलोच इससे पहले भी यहां से MNA मुंतखब हो चुके हैं। कराची वस्ती 2, अरसलान खालिद अब यहां पर हमें आगे दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, और खालिद मकबूल सिद्दीकी पीछे चले गए हैं। 361 पोलिंग स्टेशन में से 5 के ये भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। तो पहले अरसलान खालिद पीछे थे, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी आगे थे, लेकिन अब डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पीछे चले गए हैं। कसूर 2 की बात करें, NA 132 की, तो मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक 3,434 वोट लेके आगे नहीं, बहुत आगे हैं। NA 119 लाहौर 3, मरियम नवाज का यह हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक 2,299 वोट लेकर बहुत आगे दिखाई दे रही हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार शहजाद फारूक सिर्फ 1,109 वोट ही अभी तक ले पाए हैं, तो मरियम नवाज यहां पर लीड करती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। NA 75 नारोवाल का एक और अहम हल्का, दानियाल अजीज यहां पर आगे दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने हासिल किए हैं 10,078 वोट, जबकि उनके मुकाबले में ताहिर अली हैं जिन्होंने 5,690 वोट हासिल किए हैं। सियालकोट की ये बड़ी अहम नशिस्त, सबकी नजरें इसके ऊपर हैं। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 3,940 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। रेहाना डार 3,560 वोट लेकर यहां पर अभी तक पीछे हैं। तो सबकी नजरें हैं सियालकोट के इस हल्के के ऊपर, NA 71 के ऊपर, चूंकि सियालकोट से ये नशिस्त ख्वाजा आसिफ ने पिछले इलेक्शन में भी जीती थी। वजीराबाद का ये हल्का अहद चट्ठा यहां से आगे हैं, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं अहमद चट्ठा, वो आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि निसार चीमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक NA 66 वजीराबाद से वो यहां पर पीछे हैं। तो अच्छी